اسلام کی بنیادی تعلیمات، خطبات مکمل۔ نمازیں بے اثر کیوں ہو گئی؟ مسلمان بھائیوں، آج کے خطبے میں مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جس نماز کے اتنے زیادہ فائدے میں نے کئی خطبوں میں لگاتار آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اب کیوں وہ فائدے نہیں دے رہی ہیں؟ کیا بات ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر بھی آپ کی زندگی نہیں سدھرتی، پھر بھی آپ کے خیالات پاکیزہ نہیں ہوتے، پھر بھی آپ ایک زبردست خدائی فوج نہیں بنتے، پھر بھی باطل پرست آپ پر غالب ہے، پھر بھی آپ دنیا میں تباہ حال اور بری حالت میں ہیں؟ اس سوال کا مختصر جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو آپ نماز پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو اس طریقے سے نہیں پڑھتے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اسی لیے ان فائدوں کی امید آپ نہیں کر سکتے جو مومن کو بلند مرتبے تک پہنچانے والی نماز سے پہنچنے چاہیے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ صرف اتنا سا جواب آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا، اسی لیے ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا۔ ایک مثال، گھڑی۔ کسی گھڑی کو لے لیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بہت سے پرزے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب اس کو چابی دی جاتی ہے تو سب پرزے اپنا اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے حرکت کرنے کے ساتھ ہی باہر کے سفید تختے ڈائل پر ان کی حرکت کا نتیجہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی گھڑی کی سوئیاں چل کر ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ بتانے لگتی ہیں۔ اب آپ ذرا غور سے دیکھیے، گھڑی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحیح وقت بتائے۔ اسی مقصد کے لیے اس کی مشین میں وہ سب پرزے اکٹھا کیے گئے جو صحیح وقت بتانے کے لیے ضروری تھے۔ پھر ان سب کو اس طرح جوڑا گیا کہ سب مل کر باقاعدہ حرکت کریں، اور ہر پرزہ وہی کام اور اتنا ہی کام کرتا چلا جائے جتنا صحیح وقت بتانے کے لیے اس کو کرنا چاہیے۔ پھر چابی دینے کا قاعدہ طے کیا گیا تاکہ ان پرزوں کو ٹھہرنے نہ دیا جائے اور تھوڑی تھوڑی مدت کے بعد ان کو حرکت دی جاتی رہے۔ اس طرح جب تمام پرزوں کو ٹھیک ٹھیک جوڑا گیا اور کوک دی گئی، تب کہیں گھڑی اس قابل ہوئی کہ وہ اس مقصد کو پورا کرے جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے۔ اگر آپ اسے کوک نہ دے تو وہ وقت نہیں بتائے گی۔ اگر آپ کوک دے لیکن اس قاعدے کے مطابق نہ دے جو کوک دینے کے لیے طے کیا گیا ہے، تو وہ بند ہو جائے گی، یا چلے گی بھی تو صحیح وقت نہ بتائے گی۔ اگر آپ اس کے کچھ پرزے نکال ڈالے اور پھر کوک دے تو اس کوک سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر آپ اس کے کچھ پرزوں کو نکال کر اس کی جگہ سلائی مشین کے پرزے لگا دے اور پھر کوک دے تو وہ نہ وقت بتائے گی اور نہ کپڑا سیے گی۔ اگر آپ اس کے سارے پرزے اس کے اندر ہی رہنے دے لیکن ان کو کھول کر ایک دوسرے سے الگ کر دے تو کوک دینے سے کوئی پرزہ بھی حرکت نہ کرے گا۔ کہنے کو سارے پرزے اس کے اندر موجود ہوں گے، مگر صرف پرزوں کے موجود رہنے سے وہ مقصد حاصل نہ ہوگا جس کے لیے گھڑی بنائی گئی ہے، کیونکہ ان کی ترتیب اور ان کا آپس کا تعلق آپ نے توڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مل کر حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ سب صورتیں جو میں نے آپ سے بیان کی ہے، ان میں اگرچہ گھڑی کا ہونا اور اس کو کوک دینے کا کام دونوں بیکار ہو جاتے ہیں، لیکن دور سے دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گھڑی نہیں ہے یا آپ کوک نہیں دے رہے ہیں۔ وہ تو یہی کہے گا کہ صورت تو بالکل گھڑی جیسی ہے، اور یہی امید کرے گا کہ گھڑی کا جو فائدہ ہے وہ اس سے حاصل ہونا چاہیے۔ اسی طرح دور سے جب وہ آپ کو کوک دیتے ہوئے دیکھے گا تو یہی سمجھے گا کہ آپ واقعی گھڑی کو کوک دے رہے ہیں، اور یہی امید کرے گا کہ گھڑی کو کوک دینے کا جو نتیجہ ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ لیکن یہ امید پوری کیسے ہو سکتی ہے جبکہ وہ گھڑی بس دور سے دیکھنے ہی کی گھڑی ہے اور حقیقت میں اس کے اندر گھڑی پن باقی نہیں رہا ہے۔ امت مسلمہ کا مقصد۔ یہ مثال جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس سے آپ سارا معاملہ سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام کو یہی گھڑی مان لیجئے۔ جس طرح گھڑی کا مقصد صحیح وقت بتانا ہے، اسی طرح اسلام کا مقصد یہ ہے کہ آپ زمین میں خدا کے خلیفہ، لوگوں پر خدا کے گواہ اور دنیا میں دعوت حق کے علم بردار بن کر رہیں۔ خود خدا کے حکموں پر چلے، سب پر خدا کا حکم چلائے اور سب کو خدا کے قانون کا تابع دار بنا کر رکھے۔ اس مقصد کو صاف طور پر قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی رہنمائی اور سدھار کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ قرآن سورہ 3 آل عمران آیت 110۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو۔ قرآن سورہ 2 بقرہ آیت 143۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ قرآن سورہ 24 نور آیت 55۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ قرآن سورہ 8 انفال آیت 39۔
इस्लामी हुक्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जैसे घड़ी के पुर्जे। इस मकसद को पूरा करने के लिए घड़ी के पुर्जों की तरह इस्लाम में भी वे तमाम पुर्जे इकट्ठा किए गए हैं जो इस मकसद के लिए ज़रूरी और मुनासिब थे। दीन के अकीदे व अखलाक के उसूल, मामलों के कायदे, खुदा के हुकूक, बंदों के हुकूक, खुद अपने नफ्स के हुकूक, दुनिया की हर उस चीज़ के हुकूक जिससे आपको वास्ता पेश आता है, कमाने के कायदे और खर्च करने के तरीके, जंग के कानून और सुलह के कायदे, हुकूमत करने के कानून और इस्लामी हुकूमत की इताअत करने का ढंग, ये सब इस्लाम के पुर्जे हैं और इनको घड़ी के पुर्जों की तरह एक ऐसी तरतीब से एक दूसरे के साथ कसा गया है कि जो ही इसमें कूक दी जाए हर पुर्जा दूसरे पुर्जे के साथ मिलकर हरकत करने लगे और इन सब की हरकत से असल नतीजा यानी इस्लाम का गलबा और दुनिया पर खुदाई कानून की बालातरी इस तरह लगातार जाहिर होना शुरू हो जाए, जिस तरह की आप एक घड़ी को देखते हैं कि उसके पुर्जों की हरकत के साथ ही बाहर के सफेद तख्ते पर नतीजा बराबर जाहिर होता चला जाता है। घड़ी में पुर्जों को एक दूसरे के साथ बांधे रखने के लिए कुछ कीले और पत्तियां लगाई गई हैं। इसी तरह इस्लाम के तमाम पुर्जों को एक दूसरे के साथ जोड़ा रखने और उनकी सही तरतीब कायम करने के लिए वह चीज रखी गई है जिसको निज़ाम जमात कहा जाता है, यानी मुसलमानों का एक ऐसा सरदार जो दीन का सही इल्म और उसकी मदद करे, जमात के हाथ पांव उसके कहने पर चले। इन सब की ताकत से वह इस्लाम के कानूनों को लागू करे और लोगों को उनके खिलाफ चलने से रोके। इस तरीके से जब सारे पुर्जे एक दूसरे से जुड़ जाए और उनकी तरतीब ठीक ठीक कायम हो जाए तो उनको हरकत देने और देते रहने के लिए कूक की जरूरत होती है और वही कूक यह नमाज है जो हर रोज 5 वक्त पढ़ी जाती है। फिर इस घड़ी को साफ करते रहने की भी जरूरत होती है और वह सफाई ये रोजे हैं जो साल भर के 30 दिन रखे जाते हैं और उस घड़ी को तेल देते रहने की भी जरूरत है जो ज़कात वह तेल है जो साल भर में एक बार उसके पुर्जों को दिया जाता है। यह तेल कहीं बाहर से नहीं आता बल्कि इसी घड़ी के कुछ पुर्जे तेल भी बनाते हैं और कुछ सूखे हुए पुर्जों को रोगनदार करके आसानी के साथ चलने के काबिल बना देते हैं। फिर इसे कभी कभी ओवर हॉलिंग की भी जरूरत होती है। सो वह ओवर हॉलिंग हज है जो उम्र भर में एक बार करना जरूरी है और इससे ज्यादा जितना किया जा सके उतना ही अच्छा है। तीतर बितर पुर्जों का जोड़ फायदेमंद नहीं। अब आप गौर कीजिए कि यह कूक देना, सफाई करना, तेल देना और ओवरहॉल करना उसी वक्त फायदेमंद हो सकता है जब फ्रेम में उसी घड़ी के सारे पुर्जे मौजूद हो, एक दूसरे के साथ उसी तरतीब से जुड़े हुए हो जिस तरतीब से घड़ी साज ने उन्हें जोड़ा था और ऐसे तैयार रहे कि कूक देते ही अपनी मुकर्रा हरकत करने लगे और हरकत करते ही नतीजा दिखाने लगे। लेकिन यहाँ मामला ही कुछ दूसरा हो गया है। एक तो जमात का वह निजाम ही बाकी नहीं रहा जिससे इस घड़ी के पुर्जों को बांधा गया था। नतीजा यह हुआ कि सारे पेज ढीले पड़ गए और पुर्जा पुर्जा अलग होकर बिखर गया। अब जो जिसके जी में आता है करता है, कोई पूछने वाला ही नहीं। हर आदमी आजाद है, उसका दिल चाहे तो इस्लाम के कानूनों की पैरवी करे और ना चाहे तो ना करे। इस पर भी आप लोगों का दिल ठंडा ना हुआ तो आपने इस घड़ी के बहुत से पुर्जे निकाल डाले और उसकी जगह पर हर शख्स ने अपनी अपनी पसंद के मुताबिक जिस दूसरी मशीन का पुर्जा चाहा उसमें लाकर फिट कर दिया। कोई साहब सिलाई मशीन का पुर्जा पसंद करके ले आए, किसी साहब को आटा पीसने की चक्की का कोई पुर्जा पसंद आ गया तो वह उसे उठा लाए और किसी साहब को मोटर गाड़ी की कोई चीज पसंद आई तो उसे लाकर उस घड़ी में लगा दिया। अब आप मुसलमान भी हैं और बैंक से सूदी कारोबार भी चला रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी में बीमा भी करा रखा है, गैर शरई अदालतों में झूठे मुकदमे भी लड़ रहे हैं, बातिल और बातिल परस्तों की वफादाराना खिदमत भी हो रही है, बेटियों बहनों और बीवियों को मेम साहब भी बनाया जा रहा है, बच्चों को मादा परस्ताना तालीम भी दी जा रही है, नेताओं की अंधी पैरवी भी हो रही है और लेनिन के राग भी गाए जा रहे हैं। मतलब यह है कि कोई गैर इस्लामी चीज ऐसी नहीं रही जिसे हमारे मुसलमान भाइयों ने ला ला कर इस्लाम की घड़ी के फ्रेम में ठूस ना दिए हो। पुर्जों की दुरुस्ती के बगैर नतीजे नहीं। ये सब हरकतें करने के बाद आप चाहते हैं कि कूक देने से यह घड़ी चले और वही नतीजा दिखाए जिसके लिए इस घड़ी को बनाया गया था और सफाई करने, तेल देने और ओवरहॉल करने के वही फायदे हो जो इन कामों के लिए मुकर्रर है। मगर जरा अकल से आप काम ले तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो हाल आपने इस घड़ी का कर दिया है उसमें तो जिंदगी भर कूक देने और सफाई करने और तेल देते रहने से भी कुछ नतीजा नहीं निकल सकता जब तक कि आप बाहर से आए हुए सारे पुर्जों को निकालकर उसके असली पुर्जे उसमें ना रखेंगे और फिर इन पुर्जों को उसी तरतीब के साथ जोड़कर कस ना देंगे जिस तरह शुरू में उन्हें जोड़ा और कसा गया था। आप हरगिज उन नतीजों की उम्मीद नहीं कर सकते
जो इससे कभी जाहिर हुए थे। इबादत बेअसर होने की असल वजह खूब समझ लीजिए कि यह असली वजह है आपकी नमाजों और रोज़ों और ज़कात और हज के बेनतीजा हो जाने की। एक तो आप में से नमाजें पढ़ने वाले, रोज़े रखने वाले, ज़कात देने वाले और हज करने वाले हैं ही कितने। जमात का निज़ाम बिखर जाने से हर आदमी बिल्कुल आज़ाद हो गया है, चाहे इन फ़र्ज़ों को अदा करे या ना करे, कोई पूछने वाला ही नहीं। फिर जो लोग इन्हें अदा करते हैं वे भी किस तरह अदा करते हैं। नमाज में जमात की पाबंदी नहीं, और कहीं जमात की पाबंदी है भी तो मस्जिदों की इमामत के लिए उन लोगों को चुना जाता है जो दुनिया में किसी और काम के काबिल नहीं होते। आप नाअहल लोगों को उस नमाज का इमाम बनाते हैं जो आपको खुदा का खलीफा और दुनिया में खुदाई फौजदार बनाने के लिए मुकर्रर की गई थी। इसी तरह रोजे, ज़कात और हज का जो हाल है वह भी बयान करने के काबिल नहीं। इन सब बातों के होते हुए भी आप कह सकते हैं कि अब भी बहुत से मुसलमान अपने दीनी फर्जों को पूरा करने वाले जरूर हैं, लेकिन जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ कि घड़ी का पुर्जा अलग करके और उसमें बाहर की 20 चीजें दाखिल करके आपका कूक देना और ना देना, सफाई करना और ना करना, तेल देना और ना देना, दोनों बेनतीजा है। आपकी यह घड़ी दूर से घड़ी ही नजर आती है, देखने वाला यही कहता है कि यह इस्लाम है और आप मुसलमान हैं। आप इस घड़ी को कूक देते और सफाई करते हैं तो दूर से देखने वाला यही समझता है कि सचमुच आप कूक दे रहे हैं और सफाई कर रहे हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि यह नमाज नहीं है या ये रोजे नहीं है, मगर देखने वालों को क्या खबर कि ज़ाहिरी फ्रेम के अंदर क्या कुछ कारस्तानियाँ की गई है। हमारी अफसोसनाक हालत। मुसलमान भाइयों, मैंने आपको असली वजह बता दी है कि आपके ये मजहबी आमाल आज क्यों बेनतीजा हो रहे हैं और क्या वजह है कि नमाजें पढ़ने और रोजे रखने के बाद भी आप खुदाई फौजदार बनने के बजाय बातिल से मगलूब और हर जालिम का निशाना बने हुए हैं। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात बताऊं। आपको अपनी इस हालत का रंज और अपनी मुसीबत का एहसास तो जरूर है, मगर आपके अंदर 1000 में से 999 बल्कि इससे भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस हालत को बदलने की सही सूरत के लिए राजी नहीं है। वे इस्लाम की इस घड़ी को, जिसका पुर्जा अंदर से अलग कर दिया गया है और जिसमें अपनी अपनी पसंद के मुताबिक हर शख्स ने कोई ना कोई चीज मिला रखी है, फिर से तरतीब देना बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब उसमें से बाहरी चीजें निकाली जाएगी तो लाजमी तौर पर हर एक की पसंद की चीजें भी निकाल दी जाएगी। यह नहीं हो सकता कि दूसरों की पसंद की चीजें तो निकाल दी जाए मगर आपने खुद बाहर का जो पुर्जा लाकर लगा रखा हो उसे रहने दिया जाए। इसी तरह जब उसे कसा जाएगा तो सब ही उसके साथ कसे जाएंगे। यह मुमकिन नहीं है कि और सब तो कस दिए जाए मगर सिर्फ एक आप ही ऐसे पुर्जे हो जिसे ढीला छोड़ दिया जाए। बस यही वह चीज है कि जब उसको कसा जाएगा तो वे खुद भी उसके साथ कसे जाएंगे, और यह ऐसी तकलीफ है जिसे खुशी खुशी सह लेना लोगों के लिए बड़ा ही कठिन है। इसलिए वे सब ये चाहते हैं कि यह घड़ी इसी हाल में दीवार की जीनत शोभा बनी रहे और दूर से ला कर लोगों को इसका दर्शन कराया जाए और उन्हें बताया जाए कि इस घड़ी में ऐसी और ऐसी करामतें छुपी हुई हैं। इससे बढ़कर जो लोग कुछ ज्यादा इस घड़ी से मोहब्बत करते हैं वे चाहते हैं कि इसी हालत में इसको खूब दिल लगा कर कूक दी जाए और बड़ी मेहनत से इसकी सफाई की जाए, मगर किसी हाल में भी इसके पुर्जों की तरतीब देने, कसने और बाहरी पुर्जे निकाल फेंकने का इरादा ना किया जाए। काश मैं आपकी हाँ में हाँ मिला सकता, मगर मैं क्या करूं कि जो कुछ मैं जानता हूं उसके खिलाफ नहीं कह सकता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस हालत में आप इस वक्त हैं उसमें 5 वक्त की नमाजों के साथ तहज्जुद, इशराक और चाश्त भी आप पढ़ने लगे और 5-5 घंटे रोजाना कुरान भी पढ़े और रमजान के अलावा 11 महीनों में 5.5 महीनों के और रोजे भी रख लिया करें, तब भी कुछ हासिल ना होगा। घड़ी के अंदर उसके असली पुर्जे रखे हो और उन्हें कस दिया जाए तब तो जरा सी कूक भी उसको चला देगी। थोड़ा सा साफ करना और जरा सा तेल देना भी नतीजा बख्श होगा, वरना जिंदगी भर कूक देते रहिए, घड़ी ना चलती है ना चलेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग, और हम पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुरान सूरा 36 यासीन आयत 17।